Ferdinand, there is a reason behind it. The reason is this, that he wants to create some obstacles between Ferdinand and Mirinda, because he thinks that if Ferdinand gets the love of Mirinda easily, then perhaps he will not understand the value of love. This is one thing. The second thing is this, that Prospero also wanted to take the taste of Ferdinand's love. He wanted to see whether Ferdinand had really true love to Mirinda or not. Okay? Now the test of Ferdinand is over. And in this speech, Prospero says to Ferdinand that whatever problems he faced, in fact, those problems were the part of his test. He wanted to take the test of his love. He wanted to take he wanted to see whether he had really true love to Mirinda or not. Okay? ध्यान से सुनिए. Prospero कहता है, if I have to austerely माने कठोरता से punish you, फर्डिनेंड से कहता है कि फर्डिनेंड, अगर मैंने तुम्हें इतनी कठोरता से पनिशमेंट दिया है, तो योर कंपनसेशन मेक्स अमेंड्स, अब मैं उस पनिशमेंट की भरपाई करूंगा. फिर से देखिए, इफ आई हैव टू ऑस्टरली पनिश यू, अगर मैंने तुम्हें इतनी कठोरता से पनिशमेंट दिया है, तो योर कंपनसेशन मेक्स अमेंड, तो अब मैं उसकी भरपाई भी करूंगा और तुम्हारे पनिशमेंट में सुधार करूंगा. फॉर आई हैव गिवन यू हियर ए थर्ड ऑफ माई ओन लाइफ. फर्डिनेंड, मैं तुम्हें अपने जीवन का तीसरा हिस्सा देता हूँ. तीसरा हिस्सा कौन है? उसकी लाइफ. क्योंकि एक तो वो खुद अपना हिस्सा है, एक उसकी वाइफ, एक उसकी लाइफ. तो मैं तुम्हें अपने जीवन का तीसरा हिस्सा देता हूँ, और दैट, या वो चीज देता हूँ, फॉर विच आई लिव, जिसके लिए मैं जीवित हूँ. तो वंस अगेन आई टेंडर टू दाई हैंड, एक बार फिर से मैं ये तुम्हें सौंपता हूँ कि मैं मिरिंडा का हाथ तुम्हें देता हूँ. ऑल माई वेक्सेशंस, ऑल दाई वेक्सेशंस माने कष्ट, जितने भी तुम्हारे कष्ट थे फर्डिनेंड, परफेक्ट माई ट्रायल्स, ये सब कुछ मेरे ट्रायल थे आफ्टर लव, केवल तुम्हारे प्रेम को चेक करने के लिए, टेस्ट के लिए. एंड दाउ आस्ट स्ट्रेंजली स्टूड द टेस्ट, और तुमने बहुत अच्छे ढंग से इस टेस्ट को पास किया. हियर अफार है विद, यहाँ भगवान के सामने, आई रेक्टिफाई दिस माई रिच गिफ्ट, मैं ये जो उपहार है ये कंफर्म करता हूँ, अर्थात तुम्हें मिरिंडा को मैं सौंपता हूँ. हेडिंग लगाए जो दिक्कत था पूछे. Engagement of Ferdinand and Mirinda. The engagement of Ferdinand and Mirinda is celebrated here, and Prospero, he orders the spirits to come in the forms of singers and dancers, and to give the performance for the entertainment of Ferdinand and Mirinda. So by the order of Prospero, all the spirits, some spirits they assume the form of dancers, some spirits they assume the form of singers, some spirits they assume the form of farmers, and they come in different costumes and they perform very fantastic program before Ferdinand and Mirinda for their entertainment. But as soon as the show is over, Ferdinand is very much surprised to see, and Ferdinand, he wants to ask his
sorry, he asked from Prospero who were these actors. ठीक है, फर्डिनेंड पूछता है कि एक्टर कौन थे, और मिरिंडा को लगता है कि उसके फादर एकदम उदास से हो गए हैं, तो क्या बात है। तो प्रास्पेरो इस स्पीच में फर्डिनेंड को बताता है कि जो एक्टर्स थे हमारे, वो इंसान नहीं थे, दे वर नॉट रियल ह्यूमन बीइंग जस्ट लाइक अस। द रियलिटी इज दिस दैट दे वर स्पिरिट्स, वो आत्माएं। क्लियर, अब ध्यान से। प्रास्पेरो पहले फर्डिनेंड से कहता है, क्योंकि प्रास्पेरो थोड़ा सा उदास हो जाता है। उदास क्यों होता है? क्योंकि जस्ट प्रास्पेरो हैज come to know that a conspiracy is being made by Calvin, Stefano and Tancredo. When Prospero comes to know that a conspiracy is being made, and under this conspiracy, these three rascals have decided to take the life of Prospero, to kill Prospero. So when Prospero comes to know that these three people, they are making a plan to kill him, he becomes very much sad. And as Prospero becomes sad, Ferdinand also becomes sad, Melinda also becomes sad. Okay? तो Prospero कहता है, you do look my son in a moved shot. Moved shot कहते हैं out of mood, थोड़ा सा परेशान होना, डिस्टर्ब होना। Prospero कहता है फर्डिनेंड से कि फर्डिनेंड, मेरे सन, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, as if you were dismayed by भयभीत। ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम किसी चीज से भयभीत। बी चेयरफुल सर, श्रीमान जी प्रसन्न हो जाइए, डरने की कोई जरूरत नहीं। आवर रेवेल्स माने मौज मस्ती का कार्यक्रम आर नाउ एंडेड। अब हमारा एंटरटेनमेंट खत्म हो गया। यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दीज आवर एक्टिव, बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब कहता है प्रास्पेरो, प्लास्टिक स्पीच है, बहुत ध्यान से सुनो, कि दीज आवर एक्टर्स, ये जो हमारे एक्टर्स हैं ना, एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, पर ऑल स्पिरिट्स, ये सब आत्माएं थी। ये जो हमारे एक्टर्स थे, जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया, ये सब आत्माएं थी, एंड आर मेल्टेड इनटू थिन एयर। ये सारी आत्माएं हवा में ही मिक्स हो गई, हवा में गायब हो गई। एंड लाइक द बेसलेस फैब्रिक ऑफ दिस विजन, जैसे आधारहीन ये जो बहुत बड़ी जो बिल्डिंग थी, जो दृश्य था, जैसे ये गायब हो गया, उसी तरह से द क्लाउड केप्ट टॉवर्स, वो टावर जो बादलों को टच करते, यानी स्काई किसिंग टावर्स, गगनचुंबी जो टावर्स हैं, द गॉर्जियस पैलेसेस, जो भव्य महल हैं, सोलेम टेम्पल्स, जो गंभीर मंदिर है, एंड द ग्रेट ग्लोब इटसेल्फ, और ये स्वयं पृथ्वी, ए ऑल विच इट इनहेरिट, और जो कुछ भी इस पृथ्वी पर है, डिसॉल्व, एक दिन वो सब भी ऐसे ही खत्म हो जाएगा, जैसे ये विजन जो तुमने अभी देखा था गायब हो गया, ऐसे ही बड़ी बड़ी इमारतें, पृथ्वी, सब कुछ एक दिन ऐसे खत्म हो। एंड लाइक दिस अनसब्सटेंशियल इजेंट माने प्रदर्शन फाइडेड, और इसी आधारहीन प्रदर्शन के समान सब कुछ गायब हो जाएगा। लीव नॉट ए रैग बिहाइंड, अपने पीछे एक चिन्ह भी नहीं छोड़ेगा। वी आर सच स्टेप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये कई बार पूछी जा चुकी, ध्यान टिक मार देना इसको। ये समझिए कि पूरे प्ले की बेस्ट लाइन, इससे इम्पोर्टेंट कोई लाइन नहीं जुड़ी हुई। हम लोग कैसे हैं,
वी आर सच स्टफ, हम ऐसे लोग हैं, एज ड्रीम्स आर मेड ऑफ, या हम उन चीजों से बने हुए हैं जिनसे हमारे स्वप्न बने, यानी जैसे स्वप्न छोटे होते हैं वैसे ही हम लोग भी जीते हैं। एंड आवर लिटिल लाइफ, हमारा जो छोटा सा जीवन है, इज राउंडेड विद स्लीप, ये केवल नींद के ही समान, यही पे हेडिंग लगा ले जो दिक्कत आप पूछते। ये वी आर सच स्टेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अबाउट कैलिबन, you know that Caliban, with the help of Trinculo and Stefano, makes a conspiracy to kill Prospero. When Prospero comes to know about this conspiracy, he orders Ariel to go and to file this. At that time, while talking to Ariel, Prospero says that Calvin is really a born devil. कैल्विन के बारे में कहता है कि कैल्विन तो जन्मजात शैतान, कहता है ए डेविल, ए बॉर्न डेविल, कैल्विन शैतान है। और कैसा शैतान है? जन्मजात शैतान, जन्म से शैतान। अनहूज नेचर, जिसके स्वभाव पर नर्चर माने लालन पालन, के नेबर स्थित माने प्रभाव डालना, जिसके स्वभाव पर अच्छा लालन पालन कोई प्रभाव नहीं डालता। ऑन whom my pains, अरे इसके लिए मैंने कितने कष्ट उठाए। ह्यूमनली टेकिंग, इसे मानव बनाने के लिए मैंने कितने कष्ट उठाए, लेकिन ऑल लॉस्ट, लेकिन सब खत्म हो गया, क्वाइट लॉस्ट, सब खत्म। एंड एज विद एज हिज बॉडी एग्लियर ग्रोस, और जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ रही है इसका शरीर और भद्दा होता जा रहा है। सो हिज माइंड कैंकर्स, इसका माइंड और विकृत होता जा रहा है। आई विल प्लेग देम ऑल, मैं सभी को सजा दूंगा। ठीक है, प्लेग मीन्स पनिशमेंट, रीडिंग लगा। Prospero has decided to give up his magic. Prospero फैसला करता है कि अब वो जादू त्याग देगा। Why? Because his purpose is completed. The purpose for which he learnt magic, that purpose is now complete. So this is the reason that Prospero has decided to give up magic. अब वो जादू जो है छोड़ने का प्लान बनाएगा। ध्यान से सुनो, ये बहुत टफ स्पीच है, बहुत एक एक वर्ड को ध्यान से सुनो। प्रास्पेरो कहता ये इल्प्स माने परियां, आप हिल्स, ये सबको एड्रेस करता है, यानी ए इल्प्स ऑफ हिल्स, पहाड़ों की परियां, ब्रूक्स, पानी के झरनों की परियां, वो परियां जो पानी के झरनों में रहती है। ठीक है, ए इल्प्स ऑफ हिल्स, पहाड़ों पर रहने वाली परियां, ब्रूक्स, झरनों में रहने वाली परियां, स्टैंडिंग लेक्स, जो शांत झीलें हैं वहां पर जो परियां रहती हैं वो परियां, एंड ग्रोव्स, और कुंजों में जो परियां रहती हैं, एंड ए, और वो परियां, दैट ऑन द सैंड्स, जो रेत के ऊपर, विद प्रिंटलेस फूट, अपने पांव बनाती हैं जो बनते नहीं है, चलती हैं
लेकिन पाँव नहीं बनते। ये वो परियां जो रेत पर चलती हैं लेकिन उनके पाँव नहीं बनते। क्यों? क्योंकि जैसे समुद्र का पानी पीछे जाता है तो ये परियां समुद्र की ओर बढ़ती हैं, और जब पानी लौट तो उनके पैर बन जाते हैं। जब ये पानी लौट के आता तो ये उड़ जाती है, तो पैर गायब हो जाते हैं, इनके चिन्ह, पैरों के चिन्ह गायब हो जाते हैं। एंड ए दैट ऑन द सैंड्स, और वो परियां जो रेत पर चलती तो हैं विद प्रिंटलेस बूट्स, लेकिन उनके पांव रेत पर बनते नहीं। क्यों नहीं बनते? टू चेस, क्योंकि ये पीछा करती हैं इबिंग, घटते हुए नेपच्यून माने सागर को। जब सागर घटता है तो ये उसका पीछा करती हैं, और जब सागर आगे की ओर आता है एंड टू फ्लाई हिम, तो ये ऊपर की ओर उड़ जाता है। व्हेन ही कम्स बैक, जब सागर वापस आता है। तो इन परियों के निशान रेत पर नहीं बनते हैं। ऐसी परियों को प्रास्पेरो संबोधित करते। ए डेमी पपेट्स, ये डेमी पपेट्स है। मतलब डेमी पपेट्स का मतलब होता है एक प्रकार से आधी कठपुतली कह सकते हो, ठीक है, या इनके अंदर देवीय शक्ति है आधी, ठीक है। दैट बाई मून शाइन, ये वो परियां हैं जो चंद्रमा के प्रकाश में टू द ग्रीन शोर, हरी भरी घास पर, शोर माने खट्टे खट्टे, रिंकलेट्स गोले, मेक माने बनाती, ये वो परियां हैं जो हरी हरी घास पर खट्टे खट्टे गोले बनाती हैं। क्यों बनाती हैं? वेयर ऑफ द ईव, ताकि जो भेड़े हैं नॉट बाइट्स, ताकि भेड़े इस घास को खाएं। एंड यू हुज पास टाइम, और वो परियां जिनका मनोरंजन का काम क्या होता है, इज टू मेक मिडनाइट मशरूम, जो आधी रात में मशरूम उगाती है वो परियां। इन सबको संबोधित कर रहे हैं। दैट रिजॉइस, वो परियां जो खुश हो जाती हैं, टू हियर द सोलेम कर्फ्यू, शाम के समय जो चर्च की घंटी बजती है उन्हें सुनकर के परियां खुश हो जाती। क्यों? क्योंकि अब लोग सो जाएंगे और परियों के घूमने का समय आएगा। कर्फ्यू मान जानते हैं? वो चर्च की घंटियां जिनके बजते कर्फ्यू लगता है ना? ये इलेजी में पड़ा होगा कर्फ्यू को। हाँ सर। सर ये पता है सर, ये जो द रेप ऑफ द लॉक है बिल्कुल उससे मिलता हुआ है सर, बिल्कुल इसका हाँ डिस्क्रिप्शन। इसीलिए, हाँ ये परियों वाला इसको लग रहा पढ़ है के बिल्कुल। वही याद आ गया मुझे, उसमें आपने परियां पढ़ाई थी ना। बाई हुज एड, इन सभी परियों की सहायता से ही, जिनका डिस्क्रिप्शन किया है, इन सभी परियों की सहायता से ही मैंने जादू किया है। और बीक मास्टर्स दो ए बी, यद्यपि ये परियां बड़ा कमजोर लगती हैं, लेकिन इन कमजोर परियों से मैंने महान जादू किया। अब मैंने जादू में क्या क्या किया है वो भी देखिए। आई है बिडीम्ड माने धुंधला कर देना, द नून टाइड सन, मैंने दोपहर में चमकते हुए सूर्य को इन परियों की, एक कमजोर परियों की सहायता से धुंधला कर दिया है। ऐसा महान जादू किया। कॉल्ड फोर्थ द म्यूटिनस विंड्स, मैंने तीव्र हवा को चलाया है। एंड फिक्स्ड द ग्रीन सी, कहाँ हवा चलाई? इस हरे सागर में। एंड द अज्योर बाल्ट, और नीले आकाश के नीचे। बाल्ट माने कोई चीज जो कवर किए हो, या आकाश। तो समुद्र और आकाश के बीच सेट रोरिंग बार, एक तीव्र युद्ध के समान मैंने इन्हीं परियों की सहायता से तूफान पैदा किया। टू द डीड रेटलिंग थंडर, बादलों की गड़गड़ाहट मैंने पैदा की। हैव आई गिवन फायर, मैंने बिजली पैदा की है।
एंड रिफ्ट माने चीर देना, जोब्स स्टाउट ओक, जोब देवता है युद्ध के देवता, बृहस्पति, सॉरी युद्ध के देवता वो मार्स हैं, ये जोब है बृहस्पति देवता, जो बृहस्पति देवता के स्टाउट ओक, जो शक्तिशाली ओक के पेड़ हैं, विद हिज ओन बोल्ट, ठीक है, विद हिज ओन बोल्ट, जो उनके द्वारा क्रिएट की हुई बिजली से रिफ्ट हो जाते, फट जाते, ऐसे पेड़ों को मैंने चीरा है, मैंने फाड़ा। स्ट्रॉन्ग बेस प्रोमोनोटरी, जो स्ट्रॉन्ग बेस वाली चट्टाने हो, प्रोमोटरी मतलब चट्टाने, हैव आई मेड शेक, उन चट्टानों को भी मैंने इन परियों की सहायता से हिला दिया। एंड बाई द स्पर्श प्लग्ड अप द पाइन, मैंने पाइन के पेड़ों को उखाड़ फेंका है। एंड सेडर, सेडर होते हैं, ये भी वृक्ष होते हैं, सेडर के वृक्षों को उखाड़ फेंका है। और ग्रेप्स एट माई कमांड, जो कब्रें हैं वो मेरे आदेश पर खुल जाती हैं। और है बेक्ड द स्लीपर्स, उनमें सोते हुए मुर्दे जाग जाते हैं। ओपेंड, कब्रें खुल जाती हैं। एंड लेट देम फोर्थ, और मुर्दे बाहर निकल आते। ऐसा जादू मैंने किया है इन परियों से। बाई माई सो पोटेंट आर्ट, ऐसा जादू मैंने अपनी शक्तिशाली कला से किया। क्लियर हो रहा बेटा? अब ये कहते हैं कि ये जादू अब मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अब इनका उद्देश्य कंप्लीट हो गया। तो ये कहते हैं कि ये जादू अब मैं छोड़ रहा हूँ, त्याग रहा हूँ, यहाँ से मोस्ट। बट दिस रफ मैजिक, ये जो रफ मैजिक है, आई हियर एब्जोर माने कसम खा के त्याग देना, ये जो रफ मैजिक है ना, इस जादू को मैं कसम खा के त्याग दूंगा। एंड व्हेन आई हैव रिक्वायर्ड, अब मुझे जरूरत है, सम हेवनली म्यूजिक, बस कुछ स्वर्गिक संगीत की जरूरत है, अब मुझे जादू की जरूरत है। विच इवन नाउ आई डू, जो अभी अभी मैं करूंगा। टू वर्क माइन इन, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं जादू क्रिएट करूंगा। अपॉन देयर सेंसेस, मेरे सामने मेरे जो दुश्मन खड़े हैं, इनकी इंद्रियों को मैं ठीक करूंगा। दैट दिस एरी चार्म इज हार्ट, जो हमारे जादू के प्रभाव में अब तक। और मैं क्या करूंगा? आई विल ब्रेक माई स्टाफ माने छड़ी या डंडा, मैं जादू की छड़ी तोड़ के फेंक दूंगा। बरी इट, इसे दफना दूंगा। सर्टेन फैदम्स इन द अर्थ, पृथ्वी में काफी गहराई में इसको दबा दूंगा। एंड डीपर, इतनी गहराई में दबा दूंगा। देन विद एवर फ्लूमेट, फ्लूमेट कहते हैं गहराई नापने का एक इंस्ट्रूमेंट, साउंड को इसको पा भी ना सके, खोज भी ना सके। और आई विल ड्रॉन माई बुक, मैं अपनी जादू की किताब भी समुद्र में फेंक दूंगा इसे बुला। देखो, आई हैव, ये ध्यान रखना, दिस रफ मैजिक आई हैव। रीडिंग की जरूरत है, बताएं। सर ये प्रॉस्पेरो किससे कह रहे हैं? ये किसी से नहीं कह रहे हैं, स्वयं? साला टू दैट गाय। ओके। हाँ ठीक है, क्योंकि वेन फर्डिनेंड एंड मेरिंडा दे गेट मैरिड, सॉरी दे गेट engaged, he thinks that he has been living only for his own daughter. He learnt magic for his own daughter.
and now his work is over. So there is no need for Prospero to continue this magic. So that's why he says to himself that now he will give up his magic. He will not continue the practice of magic, because the end, the purpose for which he learned magic, that purpose has been complete. Clear? Yes, sir, clear. ये प्ले के सबसे लास्ट में बोला जाता है, और जब ये प्ले खेले जाते थे स्टेज पर, तो at that time it was the practice, sorry, it was the tradition that the main actor of the play used to come on the stage, and that actor should say something to the audience. That was epilogue. Okay. So now the play is over. Prospero comes on the stage to also says this epilogue to audience and to readers. A reader से और audience से epilogue की एक लाइन important, most important, बढ़िया लगता है। Prospero कहता है कि now अब my charms, मेरा जो जादू है, are all overthrown, माने खत्म हो जाना, अब चला जाना। Now my charms, अब मेरा जो जादू है, are all overthrown, वो खत्म हो चुका है, अर्थात मैंने अपने जादू को त्याग दिया है, छोड़ दिया। And what strength, माने ताकत आई है, और जो भी ताकत इस समय अब मेरे पास बची है, is mine own, वो अब मेरी जादू खत्म हो चुका है, तो मैंने जादू, मेरा जादू खत्म हो चुका है, और जो भी ताकत मेरे पास बची है वो मेरी खुद की ताकत, और विच इज मोस्ट फेंट, माने हल्की, बहुत कम, और मेरी जो ताकत है वो बहुत कम है, बहुत हल्की। नाउ दिस ट्रू, अब ये बात बिल्कुल सही है कि आई मस्ट बी हियर कन्फाइंड बाय यू, या तो मैं यहाँ रहूं, यहाँ जहाँ आपने मुझे प्रशंसा से, तालियों से बांध करके रखा है, तो या तो मैं इसी आइलैंड पर रहूं, और सेम टू नेपल्स, या फिर आप लोग मुझे नेपल्स भेज दीजिए, या तो मैं यहाँ रहूं या आप लोग मुझे नेपल्स भेज दीजिए। लेट मी नॉट, मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। प्रॉस्पेरो कह रहा है मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। क्यों यहाँ नहीं रहना चाहिए? Since I have my dukedom got, क्योंकि मुझे मेरा ड्यूकडम मिल गया है। एंड pardoned, माने माफ करना, द डिसीवर, और जो धोखेबाज मेरा भाई है, मैंने उसे भी माफ कर दिया। dwell in this bare island, dwell माने रहना, अब मैं इस बेल आइलैंड पर रहूं, बाई योर स्पेल, तुम आप लोगों ने मुझे जादू से बांध के रखा है, तो क्या मैं यहाँ आइलैंड पर रहूं या मैं नेपल्स चला जाऊं? अभी लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं कि बट रिलीज मी फ्रॉम माई बैंड्स, आप मुझे मेरे बंधनों से मुक्त कर दीजिए। कैसे मुक्त करेंगे आप? विद द हेल्प ऑफ योर गुड हैंड्स, अपने अच्छे हाथों की सहायता। अच्छे हाथों की सहायता से मतलब ताली बजा करके आप मुझे मुक्त करें। जेंटल ब्रीथ ऑफ योर्स,
माई सेल। अब देखो यहाँ पे इमेज दी है, जैसे एक जहाज होता ना, तो उसमें जो साइड में कपड़ा टाइप का लगा होता मस्तूल, उसमें जब हवा भरती है तब जहाज चलता है। तो ये कहते हैं कि मेरा जो जहाज है उसमें आपकी प्रशंसा की हवा भर गई है, तो अब मुझे चलना चाहिए। इस ढंग से कहेगा कि जेंटल ब्रीथ माने प्रशंसा ऑफ योर्स, आप लोगों ने जो प्रशंसा करके माई सेल्स मस्ट फिल, मेरे जहाज रूपी मस्तूल में जो हवा भर दी है, अर्थात आपने मुझे चलने के लिए भी बिल्कुल रेडी कर दिया। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, आप लोगों ने मेरी प्रशंसा की। और एल्स, अगर आप मेरी प्रशंसा ना करते तो माई प्रोजेक्ट, तो मेरा जो उद्देश्य है ना आपको प्रसन्न करने का, फेल्स, वो फेल हो जाता। अगर आप मेरी प्रशंसा ना करते या आपको मेरा प्ले अच्छा ना लगे। और मेरा प्रोजेक्ट क्या था, विच वाज टू प्लीज, वो केवल आपको प्रसन्न करना। नाउ आई वांट माने कमी, स्पिरिट्स माने आत्माएं, अब मैंने जादू छोड़ दिया है तो मेरे पास आत्माओं की कमी है, अर्थात अब मेरे पास आत्माएं नहीं। तो इन फोर्स, जिनको मैं फोर्स करके कोई भी काम करा सकती, वो आत्माएं मेरे पास नहीं। आर्ट टू इंचेंट, इंचेंट माने जादू, अब मेरे पास जादू की भी कला नहीं है। एंड माई एंडिंग इज डिस्पेयर, अब मेरा अंत भी निराशा से होगा, जैसे कामन व्यक्ति का अंत निराशा से। Until I be relieved by prayer, जब तक आप लोग प्रार्थना करके मुझे भगवान से दुआ नहीं मांगते, तो मैं तब तक मेरा अंत निराशा से भरा हुआ होगा, यानी मैं निराशा से मरूंगा। तब अगर आप मेरे लिए दुआ नहीं मांगते, विच पीर्सेस, ये दुआ ही है जो अंदर प्रवेश कर जाती है, पेनिट्रेट कर जाती है, घुस जाती है। सो दैट इट असाल्ट्स मर्सी इटसेल्फ, और ये प्रार्थना ही होती है जो मर्सी को, दया को क्रिएट करती है। एंड फ्रीज ऑल फॉल्ट्स, और हम मनुष्यों सारे गुनाहों से मुक्त करते हैं। As you from sins were pardoned me, और जैसे मुझे माफ कर दिया है आप लोगों ने, वैसे भगवान भी तुम्हें तुम्हारे गुनाह जो हो गए हैं जाने अनजाने में, उनसे भगवान तुम्हें भी माफ कर देंगे। लेट योर इंडल्जेंस सेट मी फ्री, मैं चाहता हूँ कि आपका प्रेम, स्नेह, अप्रूवल मुझे मिल जाए, ताकि मैं मुक्त हो जाऊं और इस आइलैंड को छोड़कर नेपल्स चला जाऊं, अपनी यात्रा स्टार्ट। क्लियर? 2 मिनट में रीडिंग लगा ले, जो दिक्कत है।